Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing a very important topic of the human resource management, that is the pay for performance and financial incentives. So this is the significant topic and very, important in a sense that everyone in the organization is concerned about the money and its motivational power and its power to grab the opportunities. It is the money uh, to which organizations are able to sustain, and it is the money which motivates the employees to join your organization. Okay, so today we will discuss what is the theory, what is the psychology behind the money in the organization. Okay, and why that is much more important in the organization. Okay, so today we will discuss how we can manage uh, the performance systems and how we can manage the financial incentives, okay, and how these are important in the organizations. So let us discuss again. These are our study objectives, to know what are the incentives and for the individual employees, and what are the advantages and disadvantages of different incentives for salespeople and for the people who are working in the organizations and whose performance can be measured in terms of quantity and quality. And name and define the most popular organization-wide variable pay plans. Okay, and it is also to describe what are the major incentives for managers and executives. Okay, because the executive pay plans are another segment of organizations, and we want to discuss how these are different from the managing employee pay plans. Okay, so so how motivation is important for the managing the pay and managing the uh, performance in the organization. Okay, what is the motivation behind giving the incentives and what is the motivation behind accepting the incentives? So further we will discuss what actually the incentives are. Okay, so how can we define incentives? Have you heard this word before, incentives? It is very interesting word. It is very, satisfying word, and it is a very encouraging word uh, for the employees. So the incentives refer the financial rewards paid to workers whose production exceeds a predetermined standard. Okay. So every organization basically has set some standardized the targets for their employees. Those standardized targets are performance standards are part of the job description, and the basic salary which they get has some requirement with regard to the performance of the employees. Okay, so if any person who has to go beyond the job description, who performs beyond predetermined standards, that person deserve some financial benefits. And in terms of the rewards, in terms of any other financial payments. So if organizations pay financially to such employees who perform well and who, who exceed the predetermined performance standards. So that provision of financial payments to those employees can be said as incentives. Okay. So incentives are basically what? Incentives are financial rewards which are given to those who perform high, who perform
beyond their expectations or beyond what their official role requires. Okay, so these incentives are basically given to either extra role behaviors or these incentives are given for the in-role behaviors when their performance exceeds the prerequisites of that role or that job. Okay, so whenever we say what is the motivation behind that and who was the person who was behind this, this theory of the incentives, that was a Frederick Taylor. Okay, Frederick Taylor was the person who introduced this term long ago. Okay, and because he was the supervisor in medieval steel company, so he was concerned about uh, the action of the employees, which he called systematic soldiering. Okay, systematic soldiering can be defined as the employee's tendency to go slow, to produce at the minimum acceptable level. Okay, or in other words, employees don't want to exceed their performance uh, beyond what is expected of them. Okay, why? They think that putting more efforts or putting more efforts will not yield any benefit to them. So why should they waste their energy? So Taylor basically said that people go home with a lot of energy with them. That energy can be utilized in workplace. So how can we do that? We have to, in other terms, we have to purchase that energy. We have to, the pay for that energy, which they take with them at home. Okay, so he provided that he suggested that if we provide the employees the financial incentives, they will put more efforts. And what will be at the end? It will result in higher level of productivity. Okay? So what is the productivity? It is the ratio of the outputs, it means the goods and services, divided by the inputs, such as the resources. What sort of the resources are used in the organization? The resources can be given, resources can be termed as, say, for example, the labor, the capital, the money, the machine, the equipment. So this is a sort of input, and what sort of output we get? We get output in terms of products and services. Okay, so the ratio, if the output is higher than the input, it means the productivity ratio is greater than 1. Okay, so uh, how can we do that? We have to energize the people by giving them some motivational incentives, those incentives which provide greater motivation to them, and those incentives should be some extrinsic in in the form. Okay, and those incentives should be the objective incentives. Okay, which should be valuable to them, and he termed those incentives as financial incentives. So giving them the financial rewards, Mr. Taylor said that people will use the extra energy which is accumulated with them and which is not used in the organization because of the tendency of the people to perform at minimum accepted level. That the term he called as a systematic soldiering. Okay, so basically the Taylor made 3 major contributions. Okay, what were those contributions? He saw the need for formulating a fair day's work.
namely the precise output standards for each job. He also uh, given the theory of scientific management. Okay, what was the scientific management theory? That scientific management movement emphasized uh, on the improving work through observation and analysis. Okay, he said that we have to keep an eye on the level of the performance in the organization, and we have to see what sort of the factors can influence their performance. Okay, we have to analyze the sources of the people's motivations, and we have to take steps to uh, you know add up towards to those sources so that the performance can be enhanced in the organization. Okay, and then he also popularized using this financial incentives as incentive pay system. He said that we have to reward the employees. We have to give financial incentives to those people who surpass the standards or performance standards. Okay, who give more efforts, who give more output to the organization, who are the sources of increased productivity in the organization. So those people should be acknowledged in terms of providing them the financial incentives, right? Okay. So, as I discussed, the Frederick Taylor was a person behind this theory of providing the incentives, the financial incentive to the employees who surpass our basic requirement for their job. Okay. तो इसने यही मतलब इसने मैंने जिस तरह ये बताया कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बताई थी, तो हम ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक सोल्जरिंग इसने कहा था। सिस्टमेटिक सोल्जरिंग क्या है? सिस्टमेटिक सोल्जरिंग एक ऐसा एम्प्लॉय बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोग जो हैं वो कहते हैं यार कि हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट क्यों दें, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर उससे कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। तो मिनिमम जो है, अभी देखें अगर हम आपको फोकस किसके ऊपर है, आमतौर पर लोगों ने क्या किया कि जी इन्होंने कर दिया आप मतलब है कि इंट्रोड्यूस कराया बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है, ओके जी बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या करता है? बायोमेट्रिक सिस्टम जस्ट ब्रिंग द पीपल टू द ऑफिस, राइट? बायोमेट्रिक सिस्टम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इट इज अ कंट्रोल मेजर, इट कैन मैनेज द अटेंडेंस, इट कैन मैनेज द एब्सेंटीज्म, ठीक है, एंड इट आल्सो कैन मैनेज टू प्रिवेंट फ्रॉम द घोस्ट एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि जी कौन रियल बंदा है कौन नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ थी जिसको हम कहते थे कि जी वीज़ा पे चला गया बंदा, या इस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस थी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, वो ख़त्म होती हैं। मगर मुझे ये बताएं क्या सारे एम्प्लॉइज अगर आपके ऑफिस में मौजूद हैं तो डू यू थिंक दैट इट इज़ इनफ टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज? नो। ओके, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता होता हूँ मोटिवेशन की, जब भी हम बात करते हैं तो किसी ने कहा कि एक बंदे का काम होता है ना कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि जी इसका मतलब है कि आपका काम क्या है कि घोड़े को तालाब तक लेके जाना, ठीक है, और पानी पिलाना हमारी मतलब हमारे बस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि घोड़े को तालाब तक लेके जाते हैं, उसके बाद पानी वो पिए या ना पिए उसकी मर्जी है। तो वो ये जो आपका बायोमेट्रिक सिस्टम है, जितने भी आपके साइबरनेटिक कंट्रोल्स हैं, ये सिर्फ घोड़े को पानी तक पहुंचाने तक का काम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लतीफ़ा बताता होता हूँ, और वो ये है कि एक बंदा था जिसने मतलब कहते हैं कि एक चौधरी साहब ने अपने बेटे को कहा कि घोड़े को जो है वो पानी पिला के लाओ, ठीक है। तो उसने कहा बाबा मेरे होंठ जो है ना वो दुखते हैं। उसने कहा तुम्हारे होंठ के दुखने से घोड़े के पानी पीने से क्या फर्क या क्या उसका लिंक? तो उसने कहा ये जो ट्री कहते हैं वो कौन करेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब जानवरों को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं या वो जो होते हैं ना चरवाहे, तो वो फिर पानी के साथ साथ कुछ आवाज़ें निकालते हैं,
भैंसिन को पानी चलाने ले गए या किसको, तो थोड़ी सी ना वो आवाज़ें निकालते हैं और वो आवाज़ों से एक कम्युनिकेशन होती है इनकी आपस में, फिर ये आपने पानी पीना है, बात समझ आ रही है? हालांकि पानी तो उसने खुद नहीं पीना है, मगर फिर भी वो आवाज़ निकालते हैं। वो जो आवाज़ निकालना है ये क्या है? ये मोटिवेशनल इंसेंटिव्स है, ये मोटिवेशंस हैं। ठीक है, आप उन्हें याद दहानी कराते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, आप उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, आप उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड दोज वॉइसेस, ओके, मगर ये एक ट्रेडिशनली हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में आती है। तो ये क्या है? मोटिवेशंस की बात। मैंने कहा साइबरनेटिक कंट्रोल सिर्फ एम्प्लॉइज को ऑफिस तक लेके जाते हैं, और वो ऐसे है जैसे आप एक घोड़े को तालाब तक लेके जाते हैं। अब घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये नहीं, मगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ लोगों को ऑफिस तक लेके आना काफी नहीं होता, उनसे काम लेना आपको पड़ता है। फिर उसके लिए जो हमारे जिस्म के सिस्टम है, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक रिवार्ड सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम। मगर आमतौर पर ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं पनिशमेंट्स पे। हालांकि पनिशमेंट्स जो है वो एक हद तक अगेन वो फिर इंश्योर करती हैं, ठीक है, कि जी बंदा जो है वो बंदा काम क्यों करता है, बंदा पनिशमेंट से बचने के लिए करता है। ठीक है, अब पनिशमेंट से बचने के लिए भी जो आप काम करेंगे ना, तो उसमें भी क्या है कि पनिशमेंट से बचाती है सिर्फ कब, जब आपके एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। सही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया जी आपने क्लास में अगर आप नहीं आएंगे तो आपको आपका एग्जाम फॉर्म नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस पनिशमेंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि जस्ट क्लास में आ जाएंगे। मैं कहूँगा जी असाइनमेंट सबमिट नहीं कराएंगे टाइम पे तो आपको जो है मैं मार्क्स काट दूंगा। आप क्या करेंगे, असाइनमेंट सबमिट कर देंगे टाइम पे, मगर वो उस असाइनमेंट की क्वालिटी क्या है ये उसको आप नहीं देखेंगे, दैट विल नॉट बी योर फोकस। अगर मैं ये कहूँगा कि असाइनमेंट्स जो है जिस लोगों ने टाइम पे दी हैं, और असाइनमेंट्स को मैं क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में चेक भी करूँगा, और जिसकी अच्छी होगी उसको मैं फाइनेंशियल रिवार्ड भी दूंगा, और उसका नाम मैं वेबसाइट पे जो है वो लगा भी दूंगा कि इस बंदे ने बेहतर जो है वो काम किया है सबसे ज़्यादा। क्लास में उसको मैं पोजीशन दूंगा, अवार्ड भी दूंगा या सर्टिफिकेट दूंगा। आप देखें फिर सर इसमें क्या मतलब होगा जी, क्या हुआ? सर जैसे कैरेट एंड स्टिक थ्योरी हो गई जैसे, वो क्या होती है? सर ये है ना पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स की। हाँ, सो ये पनिशमेंट और रिवार्ड्स की बात है। तो रिवार्ड्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। अब ये इसमें यहाँ तक जो बात है फाइनेंशियल रिवार्ड्स की, नेक्स्ट जो थ्योरीज होंगी उसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रिवार्ड्स, इसमें फिर रिवार्ड्स को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटेंसिव रिवार्ड्स हैं और दूसरे इंटेंसिव रिवार्ड्स। सही है, अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के आथर से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मोटिवेशंस के ऊपर कि किस किस बंदे ने किस किस लेवल की जो है वो बातें की हैं कि जी वो कब जो है इंटेंसिव रिवार्ड चाहिए होते हैं और कब जो है फाइनेंशियल रिवार्ड चाहिए होते हैं। मैंने असाइनमेंट में एग्जांपल दी थी तो मैंने दो बातें की। एक तो ये कि मैं कहूँगा अगर टीचर कहता है जी कि मैं उसको फाइनेंशियल रिवार्ड दूंगा, और दूसरी तरफ से एक टीचर कहता है जी मैं उनको सर्टिफिकेट दूंगा या शील्ड दूंगा या उसका नाम क्लास में जो है वो अनाउंस करूंगा या बोर्ड पे नाम डाल दूंगा या वेबसाइट पे नाम डाल दूंगा कि जी इस बंदे ने अपने असाइनमेंट बेहतर किया। तो मुझे ये बताएं कि हर बंदे की जो है वो लेवल ऑफ मोटिवेशन या उसका जो फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है वो डिफरेंट है। कोई बंदा ऐसा होगा जो उस 1000 रुपये का के लिए मोटिवेट होगा, हो सकता है कि एक आध बंदा ऐसा हो। कुछ लोग या ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं यार हमें 1000 रुपये से ज्यादा हमें सर्टिफिकेट जो कि 50 रुपये में बनता है उस सर्टिफिकेट की ज्यादा वैल्यू है, या वो जो नाम जो हमारा आएगा फर्स्ट पोजीशन अनाउंस होगी तो उसमें जो है वो ज्यादा उसकी वजह से ज्यादा वो बंदा मोटिवेट होगा। सही है, एक तीसरा बंदा ऐसा भी होगा जिनको दोनों की परवाह नहीं होगी, यार छोड़ो क्योंकि मेरे लिए वो जो मेरा सुस्ती और काहली के अंदर रहना है और वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, एक अगेन एग्जांपल दे दूँ, अभी बातें चल पड़ी हैं। तो एक बंदा था वो कि किसी तालाब के किनारे पे ना सोया हुआ था, या नहर के किनारे पे या किसी झील के किनारे पे सोया होता था। सुबह आधा सारा दिन उधर जो है किसी दरख्त के साए में पड़ा रहता, तो सुबह शाम को उठ के चला जाता।
एक बंदा वहां पे आके फिश पकड़ता, तो उसने कहा जी कि इसने देखा यार ये बंदा आता है और आकर दरख्त के नीचे सारा दिन बैठा होता है, सोया होता है, कभी कुछ क्या कर रहा होता है और शाम को चला जाता है, कोई काम काज नहीं करता। ये तो फिश पकड़ने वाला कभी उधर जाए कभी उधर जाए, फिश के पीछे धूप में बैठा रहे, आखिर में शाम को कुछ फिश लेके चला जाए। एक दिन इसने फिश पकड़ने वाले ने उसको कहा यार आप डेली जो इधर आते हैं काम तो कोई नहीं करते, तो फिर क्यों आते हैं? तो उसने कहा मुझे जो है ना वो पानी अच्छा लगता है, झीलें अच्छी लगती हैं, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है यहाँ पे जो ना। उसने कहा अच्छी बात है, आप यहाँ पे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, यहाँ आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मगर मैं यहाँ पे फिर फिश भी पकड़ लेता हूँ, साथ साथ बैठा होता हूँ। मैंने कहा यार चलो पानी के साथ भी गुजर जाता है और साथ में फिश भी पकड़ लेता हूँ। उसने कहा जी फिश पकड़ने से क्या होगा? फिश पकड़ के आप मार्केट में बेच सकते हैं। जब मार्केट में बेचोगा फिर क्या होगा? पैसे मिलेंगे। पैसों का क्या होगा? पैसे मिलेंगे तो आप जनाब थोड़े से जो ना और सेविंग करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे और सेविंग करके तो आप अपने लिए गाड़ी खरीदें, घर खरीदें और कुछ करें आप। तो गाड़ी और घर अगर मेरे पास आ जाएगा तो क्या होगा? जिंदगी आपकी सुकून से गुजर जाएगी। उसी का वो सुकून तो मैं अभी कर रहा हूँ, बगैर कुछ किए मैं सुकून कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उस सुकून की तलाश के लिए इतना मतलब है तगदो करने की क्या जरूरत है? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो हैं वो सारी चीज़ों से भी उसके बावजूद भी मोटिवेट नहीं होंगे, मगर हकीकत ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि हर बंदे के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल जो है वो आप समझे कि एनर्जी होती है, यानी कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि अनयूज्ड पड़ी हुई है, ठीक है। और वो अनयूज्ड जो एनर्जी है उसको फोकस करने के लिए हमें मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं, यूज करनी पड़ती है, सही है। तो वो मोटिवेशन जो है ज़रूर बंदों के ऊपर असरअंदाज होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, सही है। तो ये एक बात है कि हम लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोटिवेशनल पावर्स को यूज करने की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो अगेन जो जिस तरह मैंने बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, people are different from each other on variety of reasons and variety of the factors. Okay, one way or maybe different maybe on you know the personality, abilities, values and needs. Okay, और हम इस बात के हमेशा डिस्कस करते आते हैं कि जी लोग पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट होते हैं, एबिलिटीज के पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट होते हैं, वैल्यूज के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं, हर बंदे की अपनी नीड्स होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि कोई बंदा ऐसा होगा जिसको 1000 रुपया ज़्यादा मोटिवेट करेगा या 10,000 रुपये ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और बनस्पत दूसरे बंदे के जिसको शायद उस पैसे इतना ज़्यादा मोटिवेट ना करें, ठीक है। मगर एक चीज़ ये है कि बाज़ का जो है वो मनी का जो मोटिवेशनल पावर है ना, विच इज़ ग्रेटेस्ट, it is greatest in the sense that people are motivated towards money even though they have a lot of money already, okay। उनके पास पहले से पैसा बहुत है फिर भी वो उस पैसे के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वो उस कहते हैं ना कि न ईसा पिए न मूसा पिए, सबसे बड़ा पैसा पिए, ओके। पैसे की पावर सबसे ज़्यादा है, इसका जो मोटिवेशनल पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है। मगर ये है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे थे, लोग पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी के हवाले से भी मुख्तलिफ हमने पहले से बात की है, मुख्तलिफ लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब है कि टॉलरेंस का लेवल उनमें ज़्यादा होता है, कुछ में नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा यानी कि न्यू चीज़ों को कोशिश करते हैं, एडवेंचरस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, एडवेंचरस ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, स्लो मोशन में काम करने को पसंद करते हैं, न्यू चीज़ों को जो है वो ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हर हवाले से लोगों के सोच जो है उसका मयार अलग होता है। देन एबिलिटीज़ की बात है, हमने कहा कितने भी रिवार्ड्स मिल रहे हों, कितनी भी चीज़ें मिल रही हों, बंदे की जो अपनी परसेप्शन है कि आया मैं उस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये भी जो है मैटर करेगी, सही है।
अगर मुझे कहा जाए कि कोई सॉफ्टवेयर बना के दो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, मैं तो बड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, सॉफ्टवेयर मुझे बनाना आए ना, मैं नहीं बना सकता तो फिर नहीं करूँगा काम। तो ये है कि हर बंदे की जो एबिलिटीज़ हैं, और एबिलिटीज़ को हमने हमेशा डिवाइड किया है कि वो एबिलिटीज़ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी होती हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ भी होती हैं, मेंटल एबिलिटीज़ भी होती हैं, और इंटरेक्शनल एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सी हैं, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो एबिलिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, और हर बंदा एबिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव में भी एक से दूसरा बंदा डिफरेंट होता है। वैल्यूज़ की बात भी है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें कि वो वैल्यू क्या है, ये आपकी हमारी जो लॉन्ग हेल्ड कन्विक्शंस हैं about what is right and what is wrong. Okay, how we do, how our behavior is governed by these values. Okay, or these long held perceptions. Okay, तो नीड्स जो है अगेन मुख्तलिफ किस्म की नीड्स हैं, हम अगर नीड्स की हियरार्की थ्योरी भी पढ़ेंगे तो नीड्स के हवाले से लोग डिफरेंट होते हैं। Then different people react to different incentives in different ways. That is again, people not only are different, but their behavior to different incentives is also different. Okay. Managers should be aware of the employee needs and fine-tune the incentives offered to meet their needs. That is very important question. Okay, how to understand what people need, what people think, what people require, and how some people are different from others. Okay, this is the prime responsibility of the manager to know these facts, and you have to devise the strategy for individual people, keeping in view the individual differences. Okay, so for some people, money is not always the motivator. There are some other factors which motivate more than mere the money. Okay, so that is the basic difference. You have to understand. You have to know. So there is a research which has been conducted by collecting data from 851. So this is the basically the study of the which this study outlines and ranks the employee preferences for non-cash incentives. This study has been conducted in America, and which has collected data from 851 working or retired Americans. Okay, and these responses are cited in percentage terms. Okay, so this is the preference of the people. So what were the preferences for the non-cash incentives? So 40% of the employees were more motivated towards the trip to a destination of your choice. Okay. So if you are a salesman of the employee or salesman of an organization, and if you surpass your target in a given period of time, and we want to give you the main different options for the non-cash incentives. So what will be your preference? Okay. So in such questions, 40% of the employees said that they will prefer to go for a trip to the destination of their choice, right? And 23% chose for a shopping spree, okay, at the store of their choice, and 19% chose for the home improvement and beautification items, and 10% preferred tickets, season tickets for their favorite entertainment venue, and 4% opted for the items related to electronics. Okay. So what was the highest preference point? There was a trip to
a destination of your choice. So this study also highlights the importance of incentives that does not involve any cash payments. Okay, so normally we say the non-cash incentives. Okay, so there are some certain theories which basically govern how uh, people choose to satisfy their needs, their wants, and what they value in the organizations. The most prominent and classical theory of the motivation, which we might have studied earlier, that is the Abraham Maslow's hierarchy of needs. Okay? So, who will be of you people who would explain this theory and how it will relate to the incentive or pay plans? Anybody from your class? Raise your hands who is interested to explain, and I will make that person a participant in this. जी असद बोलिए. सर ये जो इब्राहिम मैस्लो की हायरार्की नीड्स की थ्योरी है उसमें जो उसने स्टेजेस डिवाइड किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि फिजियोलॉजिकल जो स्टेज है उसमें वो बंदे हैं जो सिर्फ उसकी जो फूड है और उसके अलावा जो उनका वाटर है जिंदगी जीने की जो मेन चीजें हैं उनको वहां पे नीड होती है. उसके अलावा उससे दूसरा स्टेज जब बनता है तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी और सेफ एनवायरनमेंट जैसे हमें उसके अलावा जो हमारी नीड है कि भाई हमें शेल्टर्स चाहिए, घर चाहिए. उसके अलावा सोशल तीसरा जो स्टेज बन जाता है वो होता है सोशल रिलेशनशिप का, कि हम बोलते हैं कि भाई अभी हम तीसरे स्टेज में आ गए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमें रिलेशंस चाहिए, हमें रिलेटिव्स भी चाहिए. ठीक है. उसके बाद सेल्फ एस्टीम में सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ. उसके बाद हम बंदा सोशली बोलता है कि सोशली मेरे हर जगह पे रेस्पेक्ट हो. जैसे किसी भी बंदे की एक होती है डिजायर होती है कि मेरे अच्छी जगह पे वास्ते हो, हर किसी बंदे के साथ मेरा वास्ता हो. तो इस हवाले से आगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिकम अ डिजायर वही बात होती है कि मेरी हर जगह पे रिस्पेक्ट अच्छी हो. आई थिंक यही इसकी है थ्योरी. ओके, ये अब जो है ये थ्योरी बेसिकली इनको लोअर एंड हायर ऑर्डर में डिवाइड करती है. तो आप बताएंगे कौन सी थ्योरी इसमें कौन सी नीड जो है लोअर ऑर्डर नीड्स हैं और कौन सी नीड हायर ऑर्डर नीड्स हैं? सर फिजियोलॉजिकल जो है वो है सबसे लोअर और उसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो है हायर. Good, well done, Asad, and you have explained very well. And it is matter of pleasure for us. Our students are able to not only understand, but they are able to explain these theories in a good way, in a better way. I will also share latest papers regarding the relevance of this theory in business management, because basically Abraham Maslow was a psychologist, and his theory are today nowadays are linked to the business management concept as well. So we have with us Ms. Savera, who has raised the hand, and she also wants to explain this theory as well. Ji, Ms. Savera, thank you. सर इसमें ये है कि मतलब सर वॉइस आ रही है? जी जी. सर इसमें मतलब ये है कि बेसिक जो मतलब ह्यूमन की जो नीड है वो जो है फिजियोलॉजिकल नीड है कि उसमें सबसे जो बेसिक उसको मतलब सरवाइव करने के लिए उसको फूड और वाटर की नीड है. उसके बाद सेकंड पे अब उसको खाना पानी मिल रहा है तो उसके बाद सेकंडली वो ये चाहेगा कि भाई मेरे पास जो है वो सेफ इन्वायरमेंट भी होना चाहिए. अब उसको यानी अगर घर अच्छा है तो ये समझ लें कि मतलब उसको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए अब अपनी सेफ्टी के लिए, या अगर घर नहीं है तो उसको भाई एक मतलब अपना घर चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए. फिर अगर उसको घर भी मिल जाएगा तो फिर उसके क्या नीड हो जाएगी कि मतलब जो इंसान की जो डिजायर्स है वो बढ़ती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती. फिर उसके क्या होगी कि सोशली जब उसके पास
चाहिए, या वो फैमिली प्लान के हवाले से कह लें, या मतलब जो भी है, मतलब वो फिर उसकी नीड्स आगे चली जाएंगी। ठीक फिर है। वो सेल्फ एस्टीम पे आ जाएगा कि सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, यानी मतलब वो यही पर्सनली के हवाले से कि उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से मतलब आ जाएगा। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिकम द डिजायर्ड सेल्फ, यानी बस वो अपने से ही उसको सिर्फ गर्ज होगी कि बस मैं ही मैं हूँ, उसकी नीड्स कभी भी एंड नहीं होंगी। ये well नीड्स तो खैर बेसिक नीड्स ही होती हैं, मतलब उसकी वांट्स और उसकी जो डिजायर्स हैं, डिमांड्स हैं, वो कभी एंड नहीं होंगी। okay, okay, जबरदस्त, well explained, Miss Savera. You have very rightly said, and you both, Asad and you, have very rightly said that the basic tenet of this theory is that there are 5 needs, okay, and these are divided into a lower order and higher order needs. So it is very much important that in order to uh, you know satisfy higher order needs, you have to first satisfy. There is a requirement that the lower order needs must be satisfied first. Okay, then the higher order needs will be activated. Okay, so what are those lower order needs? These lower order needs are basically called basic needs. Okay, and you might be aware uh, with the the slogan of Mr. Bhutto regarding roti, kapra, or makan. So, what is the address of this that slogan? That slogan addresses the basic requirements, basic needs, which are covered by physiological and security needs over here. रोटी कपड़ा और मकान या उसको कहते हैं जी फूड और क्लोथिंग एंड शेल्टर। ओके, तो यानी फूड जो है खाना पीना और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बंदे की यानी कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल की नीड्स हैं। आप अंदाजा कर लें कि एक बंदा सड़क पे भी रह लेता है, बेघर आदमी जो होते हैं, होमलेस पीपल, दे कैन लिव ऑन द रोड साइड एज वेल, मगर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए? खाने की ज़रूरत है, भूख लगती है। ठीक है, वो चीज़ें जिन्हें वो फिजियोलॉजिकली अवॉइड नहीं कर सकते, वो जिनकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनकी, क्योंकि उनका मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप ऐसा है कि जिसकी वजह से उनको खाने की, पीने की या कुछ और नीड्स जो है वो होती है। ठीक है, जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकते, उन ड्राइव्स को अवॉइड नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कहा ना, एक बंदा जो है वो सड़क पे भी रह रहा है, मगर किस लिए वो दौड़ता, किस लिए है, वो किस चीज़ के पीछे, कि जो उसको खाना चाहिए। ठीक है, तो जब वो उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, इतना कुछ उसके पास आ जाता है कि वो इजीली अपनी जो बेसिक नीड्स है पूरी करता है। तो सेकेंडली वो चाहता है कि उसके पास सेफ इन्वायरमेंट हो, और फिर आस्ता आस्ता ये नीड्स जो है वो बढ़ती रहती है। तो अब यहाँ इस थ्योरी का जो बेसिक मोटो है वो क्या था कि ये थ्योरी ये कहती है कि लोगों को, जिसमें हमने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लोगों को ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ स्टेजेस में लोगों को डिवाइड करती है। एक बंदा अगर जो लोअर ऑर्डर नीड की है तो आप वहाँ पे किन चीज़ों को देखेंगे, जो हायर ऑर्डर नीड्स है उसको आप किस चीज़ में देखेंगे। तो अगर आप इसको बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ देखें, तो अगर देखें हमारे जो लोअर एम्प्लॉइज हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और आपके जो मैनेजरल सुपरवाइजरी स्टाफ है, मैनेजर स्टाफ है, या जो टॉप मैनेजमेंट स्टाफ है, और आगे सीईओज हैं, उन लोगों की फिर डिफरेंट जो है वो नीड्स होती है। ठीक है, तो यानी एक चीज़ जो लोअर ऑर्डर एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है वो हायर ऑर्डर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं होती। अगेन मैंने कहा जो फाइनेंशियल रिवार्ड हैं वो लोअर मैनेजमेंट पे ज़्यादा जो है, या लोअर लेवल पे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो इतने इफेक्टिव जो है हायर ऑर्डर एम्प्लॉयज में, हायर मैनेजमेंट में नहीं होते, क्योंकि वहाँ उन लोगों को सेल्फ स्टीम की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको सोशल नीड्स ज़्यादा हाई होती है, वो चाहते हैं समाज में उनका नाम हो, वो चाहते हैं उनकी रेस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो लोअर एम्प्लॉइज हैं वो लोग इस थ्योरी के मुताबिक वो इस स्टेज पे होते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि उन्हें सेल्फ स्टीम की नीड नहीं होती है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ द प्रेफरेंसेस, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ द
yes again the preferences, उसकी preferences क्या है और उनकी perceptions क्या हैं और उनकी needs क्या हैं। एक बंदा जिसके घर में कुछ भी नहीं है, भूख है उसके घर में, तो उसको आप कहेंगे कि जी आप खाना आके ले जाओ और मैं आपको फोटो भी बनाऊंगा, तो फोटो भी बनवा लेते हैं बेचारे, उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती, ठीक है। और उनका नाम जो है खराब होता है तो वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तो चीज़ें मिलती हैं। मगर एक ऐसा बंदा होगा, सफ़ेद पोश बंदा होगा, वो अभी देखिए यहाँ आपने कोरोना के हवाले से हमने सोशल सर्विसेज में ज़्यादातर ऑब्जर्व किया कि ऐसी फैमिलीज भी थी जिनको ज़रूरत थी कि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पे आ गए थे, हालात ऐसे बन गए थे कि उनको जो है वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं थी। मगर क्या है कि उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड थी और दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर सेल्फ एस्टीम, सो दे वर नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है। और इवन वो लोग प्रेफर कर रहे थे कि जी हम भूख पे रह जाएं मगर हमारी जो है वो आन शान पे कोई फ़र्क न पड़े, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं मुख्तलिफ तो जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक सोशल पर्सपेक्टिव में हम बात करते होते हैं कि जी ह्यूमन इक्वलिटी की, यस ह्यूमन इक्वलिटी है, मगर दिस इक्वलिटी इज बेस्ड, दिस इनइक्वलिटी व्हिच इज मेजर, you know, the criticism on this theory which divides the people into different categories, and to somehow it also you know propagates that the people can be categorized in different classes, okay. And so this is against the human equality form. मगर बात ये है कि ये जो ह्यूमन इनइक्वलिटी है इसका बेस क्या है? इसका बेस है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओके। So you cannot deny the unequal distribution of wealth, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज की तकसीम है वो बराबर नहीं है। सारे बंदों के पास क्या एक जितनी दौलत है? नहीं है। सारे बंदों को क्या एक जितनी सहूलियात मुयसर है? नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सिस्टम ऐसा जस्टिफाइड है कि जिसके तहत जो बंदा जिसका एबल है, अहल है, डिजर्विंग है, उसको वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये इसी वजह से है। तो हमने वी हैव टू लिव इट विद दिस, ओके। सो हम इसको अगर चेंज नहीं कर सकते तो कम अज कम इसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका हमारा बुनियादी तौर पर मकसद क्या होता है कि हमने एम्प्लॉइज से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिविटी रेशो हमने बढ़ाना होता है। तो उस प्रोडक्टिविटी रेशो को बढ़ाने के लिए हमने लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा किस लेवल पर है ताकि हम उसको उसी मोटिवेशन को एड्रेस करने के लिए हम उस लेवल की स्ट्रेटजी बना सकें। तो ये थ्योरी हमें उस लेवल पे आके सपोर्ट करती है। बात समझ में आ गई? आई होप, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है इसमें इसी थ्योरी के ऊपर, यानी इसी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी के ऊपर जो है बेस करते हुए एक हर्सबर्ग ने थ्योरी पेश की। और नॉर्मली दिस इज कॉल्ड अ टू फैक्टर थ्योरी, समटाइम इट इज कॉल्ड hygiene motivator theory, sometimes it is called the intrinsic factor theory, okay. So what is the basic idea of a basic notion of this theory? This theory divides the organizational factors into two categories, okay. What are the organizational factors? All those you know, the things which are offered by the organizations in order to get more performance from the employees, and all those activities, all those policies, all those your procedures which are aimed to enhance employee performance. So these factors can be divided into two categories. He said the extrinsic factors and the intrinsic factors, okay. So what are the extrinsic job factors? Extrinsic job factors are those factors which can be easily located, easily measured,
and which are objective in nature and which have some objective worth. Say for example, a cash reward is an extrinsic job factor. Okay. What are the intrinsic job factors? Intrinsic job factors are the factors which are subjective in nature and which can, they direct upon the psychological well-being of the employees. Okay, the psychological perception, which can address the psychological perception of the people. Okay, कि जी वो इंट्रिंसिक वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी जो है वो मोटिवेशन को में अंदर इजाफा करते हैं और मगर वो कोई भी ऑब्जेक्टिव टर्म में आपको चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है, इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा आपको रिकग्निशन मिलती है, तो रिकग्निशन क्या है? ये साइकोलॉजिकल एलिवेशन है, व्हिच यू फील, व्हिच यू कैन फील जस्ट, ओके, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। अगर कोई आपको अवार्ड मिलता है तो इट इज़ नॉट एडिंग anything to your bank account, but it is adding towards your respect. How you measure your respect? You measure your respect and honor in terms of your psychological evaluation or the psychological evaluation of the others. Okay, how the people feel you about, how people think about you, okay, and how you think about yourself. So these are the perceptual factors. So these are basically the intrinsic factors. Okay. So he divided basically all those factors into two major categories: hygiene factors and motivators. Hygiene factors are the extrinsic job factors. So he said that inadequate working conditions, say for example salary, incentive pay, can cause dissatisfaction and prevent satisfaction. Okay. अब इसमें ना दो तीन चीजों को मद्देनजर आप रखना है, ये थ्योरी बड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि उसने फैक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक उसने हाइजीन का नाम दिया और इंट्रिंसिक को मोटिवेटर का नाम, ठीक है। फिर जो जॉब सेटिस्फेक्शन की बात है उसको भी उसने पहले जो है वो कहते हैं ना आमतौर पर या तो आप सेटिस्फाइड है या आप डिससेटिस्फाइड, ठीक है। आमतौर पर ये कहते हैं कि आपको अगर ये चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसकी सेटिंग, ओके। अगर कोई चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर नहीं कर रहा हूँ तो आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ये जो इसमें जो इसकी दो जो कंडीशन हैं ये नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, असल में जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है, और इनकी प्रेजेंस इट कैन जस्ट अवॉइड द डिससेटिस्फैक्शन। ओके, अगर सैलरी है, इंसेंटिव है और पे है और वर्किंग कंडीशंस हैं, ये रिक्वायरमेंट हैं जॉब की, ये क्या मोटिवेट नहीं करती, इनका होना मोटिवेट नहीं करेगा, इनका होना जस्ट आपको डिससेटिस्फाई नहीं करेगा, आपके एम्प्लॉइज को डिससेटिस्फाई नहीं करेगा। इट विल हेल्प यू प्रिवेंट द डिससेटिस्फैक्शन, it will not add in the satisfaction of the employees. Why? Because these are considered as a part and parcel of the employment contract. वो आपको कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी और चाहिए, समथिंग मोर देन दैट। वो मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से हैं? वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और वो क्या है कि जॉब इनरिचमेंट हो गई, ठीक है, और ऑटोनॉमी हो गई, और इस तरह की चीज़ें जो बंदे का मयार, मकाम, सेल्फ स्टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज करते हैं, वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं। अब जॉब इनरिचमेंट क्या है कि जब आप बंदे को ज़्यादा अख्तियार देते हैं, चैलेंजिंग जॉब देते हैं, रिकग्निशन देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, अख्तियार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, पावर करते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी जो है आपको मोटिवेट करते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। बंदा अपना ज़्यादा टाइम लगा देता है वहाँ पे, ठीक है। फिर ये दीज थिंग्स एड्रेस हायर लेवल नीड्स, यानी कौन सी नीड्स को हायर करते हैं, यानी कि अचीवमेंट नीड्स को या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को, सेल्फ एस्टीम नीड्स को जो है वो एड्रेस करती है। और वो जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं मैंने कहा वो आपकी सिर्फ बेसिक जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करती है,
अभी आप ये देखें कि कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप कहते हैं जी कि आपको हम फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, आप काम करें हम आपको बेनिफिट देंगे, आपको कोई अख्तियार नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग का चीज़ नहीं है, कोई आपके लिए सेल्फ स्टीम नहीं है, सिर्फ एट द एंड ऑफ पीरियड यू गेट अ चेक, यू गेट अ पे चेक। ओके, तो पे चेक जो है इट विल नॉट मोटिवेट, दिस थ्योरी सेज। वो क्या कहते हैं जी, मोटिवेशन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ इंटेंसिव फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे जॉब, ताकि लोग जो है वो अपने आप को मोटिवेट करें। ये हकीकत में ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी ने ओवरऑल जो एक मोटो था कि जी सिर्फ पैसा ही मोटिवेट करता है, इसको उसने चैलेंज किया। पहली बार इस थ्योरी ने इंट्रिंसिक फैक्टर्स को इंक्रीज करने की कोशिश की। उसके बाद भी कुछ थ्योरीज हैं जिन्होंने तो इस हद तक बात की कि जी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं दे आर डेटरमिनेंटल। ओके, तो स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर। ओके, इन रोल परफॉर्मेंस के लिए तो ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की एक इम्पोर्टेंस होती है, मगर जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो फिर भी वो जो हमने सोल्जरिंग पढ़ा था उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सोल्जरिंग जो है वहाँ उसमें भी होती है, क्योंकि लोग फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। बाकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर का इंट्रिंसिक मोटिवेशन का भी लफ्ज यहाँ पे यूज होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स जॉब, नॉट द आउटकम। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? यू डू फॉर द सेक ऑफ द आउटकम। I am teaching here. If I am teaching for the sake of just getting salary, so I have to just fulfill the minimum requirement. Okay, I will not put extra energy into this job to make my job, my outcome, my teaching more interesting, more playful. No, I will not do anything. I will just come into class and stay with you people and fulfill the minimum requirement of the job. If I do this just because I am motivated not in the job itself, I am motivated for the outcome which are brought forward by this job. So if you are motivated, if you are interested in the outcome, you are externally motivated. If you love your job, if you are interested towards work itself, it means you are intrinsically motivated. So if you are interested in work itself and you are intrinsically motivated, you will try to get it better day by day. You will put more efforts into it. You will be able to accept new things. You will be able to accept new challenges. You will bring creativity and innovation into your job. You will be motivated to sacrifice more for your job because you love job, not the outcome. If you are extrinsically motivated, so again theory says that every extrinsic reward have a motivational factor for a very limited time period. Okay, for very limited and very brief period. That as and when that period expires, you cease to motivate, you cease to get motivated. Okay, तो ये बात है कि इस वजह से लोग कहते हैं कि जॉब्स के अंदर क्या है, वो चीज़ें ऐड करें कि बंदा जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, या वो लोग हायर करें, ठीक है, जो कि इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो उस जॉब के लिए। ठीक है, यानी एक बंदा जो है वो जॉब में मोटिवेटेड नहीं है और आपने पकड़ कर बैठा दिया और वो इसलिए बैठा हुआ कि आज कोई और जॉब मिलेगी तो मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, तब तक चलो सैलरी तो मिल रही है, मेरे बच्चों का रोजगार चल रहा है, तो वो बंदा काम नहीं करेगा। वो बंदा इसके अंदर, आपके काम के अंदर कोई भी नई जो है वो चीज़ नहीं लेकर आएगा। ही विल बी जस्ट fulfilling the basic requirement and he will be involved in the soldiering behaviors, right? So what you have to do, you have to satisfy the people's higher level needs and you have to focus on the intrinsic job factors in order to get motivation. Okay, बेटा का एक शेर था कि रोज़ा ऐ नमाज हूँ ईपुन चंगुम कम, हैं, रोज़ा ऐ नमाज हूँ ईपुन चंगुम कम, ओ बियो फहम जैसा पसरिए पिरिए के।
रोज़ा नमाज़ों बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोज़ा नमाज़ों बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर आप अल्लाह के नज़दीक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आप कोई करने से आप कोई जो है ना वो खास बंदे नहीं बन जाते। खास बंदे बनने के लिए आपको खास परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, खास काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इफ यू वांट टू गेट समथिंग, ठीक है, so it is not just by doing what is going to do, okay। हमारा एक बंदा था कि वो कहता था कि working by watching the watches, okay, you cannot get your work done in a good way by just working by watching the watches। अगर जस्ट आप देखते हैं कि जी बस 3 बज गए, आपका टाइम खत्म है, मैंने चले जाना है, ठीक है, तो आप इससे बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। जब आपकी किसी भी काम से मोहब्बत हो तो फिर काम जो है वो उसके अंदर जो है चाशनी आ जाती है खुद ब खुद, कहते हैं ना। बेटाई का एक और शेर है, मोहब्बत पाए मन में रंढा रोड़िया जिन, मोहब्बत पाए मन में रंढा रोड़िया जिन, तुम जो सराफन अनतोरिया खाए, ठीक है। रंढा रोड़न वो कहते हैं कि कच्चा फीका काम करना, ऐसे ही सिंधी में अबरो सबरो कम का। तो अगर आपके दिल के अंदर वो मोहब्बत है, वो अटैचमेंट है और वो एक फीलिंग है अपनायत की, और उससे आप काम करते हैं, मोहब्बत के साथ काम करते हैं, तो फिर आपने कच्चा फीका भी काम किया ना। तो आपके वो लोग जो आपको ऑब्जर्व करते हैं और वो आमतौर पर बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाले हैं। इसमें सराफा की एग्जांपल दी है। सराफा को सुनारों को कहते हैं। सुनारे क्या करते हैं? सुनार हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, इसके अंदर कितने कैराट हैं, क्या है, ये वो सारी चीज़ें अपने वो कसौटी पे परखते हैं, ठीक है। मगर मोहब्बत से क्या हुआ काम, कच्चा फीका भी काम हो, वो मोहब्बत को देखकर बगैर तोलने के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही है। तो वो तब होगा। ये मोहब्बत क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में ये चीज़ क्या है, तो ये जो है वो है कि जो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपके अंदर की जो उसके एनर्जी है जो आप उसके साथ शामिल करते हैं। तो बंदा काम को नहीं देखता, बंदा उस मोहब्बत को देखता है जो उसके अंदर शामिल हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं तो कोशिश करता हूँ कि बिटाई की शायरी से मैं देखूँगा बिटाई की शायरी को मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, सही है। यस, किसी ने लिखा है कि जब पैशन होता है तो तभी सक्सेस मिलती है। सवेरा अख्तर ने लिखा है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त बात मिस सवेरा, कि यकीनन जो पैशन है, ये पैशन क्या है, ये आपका वो जज्बा है, ठीक है। और वो जज्बा जब आप इंक्लूड करते हैं तो काम जो है वो बेहतर होता है। तो हम ये कहते हैं कि जज्बा ऐसे नहीं आता, जज्बे को लाना भी पड़ता है। एज ए लीडर, एज ए मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, if you want to improve the people's passion, you have to make work more playful for the people, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल अपनाना पड़ेगा, आपको एक फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो, ठीक है। आपको लीडर्स जो हैं वो ऐसे हों जो कि सपोर्ट मैकेनिज्म को सपोर्ट करने वाले हों। डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेवलपमेंटल फीडबैक देना पड़ेगा, और ऐसा फीडबैक, ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसा एनवायरनमेंट आप उनको क्लाइमेट क्रिएट करके दें जिसमें लोग अपने आप को समझें कि यहाँ पे बैठकर हम क्या नाम है इम्प्रूव करेंगे, प्रमोट होंगे, यहाँ हमारा फ्यूचर जो है वो महफूज है। तो ऐसी एनवायरनमेंट में लोगों का पैशन डेवलप होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ बैठ के मेयर करने लगे, हाँ जी ओके आपने इतना काम किया है, इतने पैसे लो और चल पड़ो, तो फिर वहाँ पे पैशन डेवलप नहीं होता, ठीक है। वहाँ आप बंदे को कहें हाँ जी आप आ गए, आप हमारे बंदे हैं, ये लें आपके अख्तियार आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, आप बैठ के काम करें। जब आप ऑटोनॉमी देते हैं, जब आप पावर देते हैं, जब आप अथॉरिटी देते हैं, जब आप अख्तियार देते हैं, ठीक है, तो लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, लोग फिर बैठ के काम करते हैं, लोग फिर अपनी एनर्जी दे देते हैं, अपनी जिंदगियाँ उसमें खपा देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपना काम करते हैं, अपना रक्त सत्य देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात है कि जब आप इंट्रिंसिक फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे तो ये करेंगे। और इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे नहीं होते हैं, आप कहें
क्योंकि देखें एक मैं यहाँ क्योंकि अगली स्लाइड्स पे जाने से पहले यहाँ 1-2 मिनट हैं तो मैं उसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये बड़ी ये एक ज़बरदस्त डिस्कशन है कि आया पेशेंट लोग लेके आए, उनके अंदर इनग्रेंड होगा या ये इट कैन बी डेवलप्ड, देयर आर बोथ थ्योरीज, ठीक है। हम हमेशा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हम डेवलप कर सकें। हम कहते हैं कि ये आप ये कह दें कि कि बंदा जो है वो सारी मोटिवेशन लेके आए, सारी एनर्जी लेके आए, सारे सेक्रीफाइस लेके आए, सारे जज्बात लेके आए, आपने कुछ ना करना हो, तो ये बात गलत है। आपने क्या करना है भाई, आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जिस माहौल के अंदर लोग जो है अपने आप को समझें कि जो है वो अपना पेशेंट भी ले आएँ, अपने जज्बात को भी बेहतर करें और अपनी मोटिवेशन को भी बेहतर करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप बैठें और आप कहें कि जी एक आपने कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है उन लोगों ने करना है, ठीक है। इस वजह से जो डिस्पोजिशनल थ्योरीज हैं, इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म होता है कि disposition theories put blame on the employees. They don't blame on the organizational leaders. What are the role of the organizational leaders? Organizational leaders have to create an environment. Then comes the theory of Edward Desai, and they said that intrinsically motivated behaviors are motivated by the underlying need for competence and self-determination. Okay. Offering intrinsic reward for an intrinsically motivated act can conflict with the acting individual's internal sense of responsibility. Some behaviors are best motivated by job challenge and recognition, others by the financial performance. Okay. तो इस थ्योरी ने क्या कहा कि जो देसाई ने थ्योरी दी और उसने कहा कि आप जनाब किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसने कहा कि वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस इन डिवाइजिंग इंसेंटिव पे फॉर द हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, okay? Otherwise you ineducatedly demean and detract them from the desire they have to do the job out of sense of responsibility, okay? He was also Edward Desai was also a psychologist, and he also focused on the disadvantages of greater focus which normally people put on the extrinsic reward, okay. He said that the extrinsic rewards may backfire, okay? Because if they will detract the employees from their work, okay. If you are giving them the extrinsic rewards, so people will not be motivated towards work, they will be motivated towards the rewards more, okay. Because we want the performance of the employees on the jobs, on the tasks, okay. So we offer the rewards in order to enhance their profitability and enhance their productivity, okay. But what is the downside of the extrinsic reward? Extrinsic reward detracts the employees. Again, people tend to fulfill the requirements of the rewards, not for the job, okay. मैंने यहाँ पे एक बात की थी कि ये एक शॉप खुली यहाँ पे एक हमारे पास मदीन में एक होटल खुला कि वो उस होटल में इन्होंने बताया कि इन्होंने रखे हैं फीमेल जो है वो आप समझें कि कुक हैं और फीमेल जो क्या कहते हैं वेटर्स हैं, ठीक है। तो फीमेल स्टाफ भी वहाँ पे था। गुड थिंग, वी शुड अप्रिशिएट दीज थिंग्स, वी शुड अप्रिशिएट द फीमेल्स in this sector, okay. But one thing is more, why people should come to your hotel? They come to your hotel for the food, okay, not to see the female waiters, right? So why, if you align the things in a wrong way, you cannot get the positive results, huh? मैं हमेशा एक यहाँ पे अपनी जॉब मार्केट की एग्जांपल देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो वो ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी जो है सिंध की, वो प्रोवाइड करती हैं जो भी बंदा पीएचडी करता है उसको जो है वो 25,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो अलाउंस देते हैं, पीएचडी अलाउंस। दैट इज टू मच।
but what is the output of those PhDs? And even then, people who are getting 25,000 PhD allowance, regardless of the fact that they have got the promotions on their degree, okay, but they are complaining that they are not being supported by their universities in the research and development. उनको पूछो कि भाई रिसर्च नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, यार फैसिलिटीज ही नहीं है, ऑफिस नहीं है, ऑफिस के अंदर सप्लाईज नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक नहीं. Why? What are you doing about those 25,000 per month? Okay, if you cannot purchase the the basic requirement of your research or of your work, so what is the best use of those 25,000? So what is the problem in this? This is my perspective. Some people may differ and some people may oppose it, and if these points are highlighted to the other people, some people may become enemy to me. But one thing is more, I call it misalignment of the rewards. I am not in an opposition of giving the 25,000 allowance to the faculty. No, I support it, but I think that this should be aligned in a right way. So if you consider these 25,000 as an allowance, it means you are rewarding the degree. You are not rewarding the performance, right? So if I am having the PhD degree, regardless of its quality, regardless of its output, regardless of what I perform after having the degree, and I am getting 25,000 per month, it means just a piece of paper brings 25,000 per month in my bank account. So this is misalignment. If you consider this as a research grant and bound the people to provide you the feedback after every month or after every 3 months, what was the use of that grant, okay? So people will use in a better way. Again, people will provide the fake reports, but some sort of accountability will be there. People again at least will not complain that they are not being supported with regard to the research and etc. आपने उनको बताना है कि 25,000 हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, हर 3 महीने के बाद आप उनकी रिपोर्ट दे दें कि वो आपने ये रिसर्च ग्रांट है, ताकि आप रिसर्च करें और आप बताएं कि जी आपने जो है वो क्या कारकर्दगी की है. भले आप उसका सख्त ऑडिट ना करें, मगर एक रिपोर्ट आप हर 3 महीने बाद लें, ताकि हर 3 महीने के बाद उसका अगला जो अलाउंस है वो उस रिपोर्ट के बुनियाद के ऊपर हो. ठीक है, तो देखें लोग फेक रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, मगर ये है कि कम अज कम ये माइंडसेट खत्म होगा कि हमें वो 25,000 जो या हमें रिसर्च के हवाले से सपोर्ट नहीं हो रही. तो कहने का मकसद ये है कि एक्सटर्नल रिवार्ड इफ दे आर नॉट अलाइंड इन अ गुड वे, they will detract the employees. Okay, now if you are providing just the rewards for the degree, so everyone is in search of that degree, that piece of the paper. So what we have to do as a good HR professional, we have to reward the performance, not something else. Okay, बात समझ आ गई. तो ये एक हमारा सबसे जो है ज्यादा फैक्टर होता है कि जी हमने रिवार्ड्स का जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है उसको हमने खत्म करना है. नेक्स्ट थ्योरी जो है इसमें वो दैट फोकसेस द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द रिवार्ड्स. रिवार्ड्स आर ओके, but the reward should be instrumental. Reward must be at the level which is acceptable to them. Okay, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, मगर पहले मैं इस थ्योरी का आपको बता दूंगी ये थ्योरी क्या कहती है. ठीक है, और ये वरूम की थ्योरी है और इसका विक्टर वरूम कहते हैं, VICTOR विक्टर. और मैं इसको वरूम पढ़ता हूँ. आई डोंट नो कि इसको खाली रूम भी आप पढ़ेंगे, शायद भी अभी साइलेंट हो. So Room said that the people in general, they don't pursue the rewards. Okay, they find these rewards unattractive because they think that their success rate for the rewards is low.
So expectancy theory, what this theory says? This theory says that people exert some level of the efforts, and that effort depend on three things. Okay, what are those three things? E, I, and B. E refers to the expectancy. Okay, what is that expectancy? Expectancy is a probability that the effort will result in a performance. मैं अगर मुझे बताया जाए, मैंने कहा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. आई एम नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम नॉट ए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट. So would you think that I will accept that offer? No, because I know that my efforts will not result in the performance which is expected from me. Okay, because expectancy is developed based on people's perception of their abilities. Okay, if people perceive that they possess the right set of the skills, and their effort performance expectancy will be high. If you are given a task and you have to assess yourself, your strengths and weaknesses, your level of the skills, your level of the motivations, okay, and you at the end you will think that whether your efforts will lead to the performance or not. If that answer is yes, it means your effort performance expectancy is high. So expectancy in terms of the probability of the performance, right? Second point is the instrumentality. Okay, what is that instrumentality? Instrumentality is a perceived connection between what? Between two things, the performance and the rewards. Whether the question is whether my performance will lead to any reward or not. If someone says you have to stay 2 hours more than your designated time in your office and to have some work or to supervise some groups work, etc., etc. What will be your next question? Yes, you think that okay, if I want to stay, I can stay. I don't have any other engagement at home or somewhere else, so I can spare 2 hours more. But next question, it means your effort performance activity expectancy is high. But next question will be, what I will get in if I give 2 hours more. Huh? So what will be offered by the organization for in exchange for the 2 hours which you will be offering? So वो जो है instrumentality. What is the connection between the performance and the rewards? Okay. Yeah, in terms you could say that you will ask question whether your performance will result in any outcome in any reward or not. Okay. So this is another expectancy. So third point is the valence. The V means the valence. Valence is what? Valence refers to the perceived value a person attaches to the reward. Okay. What is the perceived value of that reward for you? If I agree that I will give 2 hours more to my work in order to perform certain tasks at my job, and I also my supervisor says me that you will be given some reward. Okay, I agree with that. How much reward is the next question? If people say that you will be given ₹100 for the 2 hours you stay in office, would you think that I will be agree with that? No. एक 100 रुपए के लिए कौन अपने 2 घंटे जाया करे? Again here that theory might be relevant. Okay, तो 100 रुपया जो है वो एक बंदे के लिए again individual differences.
एक बंदे के लिए मोटिवेटर ना हो 2 घंटे के लिए, अगर आप 2 घंटे बैठे हैं और आपको 100 रुपये मिले, या 2 घंटे आप काम करें और 100 रुपये आपको मिले, तो हो सकता है ये एक बंदे के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंटल या बैलेंस उसकी ना हो, दूसरे के लिए हो, ठीक है। मगर ये है कि ये बैलेंस जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैलेंस मीन्स वैल्यू which you attach to the rewards which are offered to you। भाई 2 घंटे के लिए मैं 100 रुपया जो है वो जो 100 रुपये के लिए मैं 2 घंटे क्यों अपने ज़ाया करूँ। तो ये 3 चीज़ें जब एक्टिवेट होंगी उसके बाद ही मोटिवेशन डेवलप। यहाँ पे आप देखें उन्होंने एक फार्मूला दिया है, E multiplied by I multiplied by V। If anything is zero, your motivation will be zero। Yeah? So that is the basic question। So that is the basic question। What is the balance of the rewards? Some students say that कि मैं तो 100 रुपये के लिए 2 घंटे बिल्कुल भी ना बैठूं, ठीक है। मगर आपको पता है कि हमारे जो अगर लोअर एम्प्लॉइज हैं और तो वो 100 रुपये के लिए बैठ भी सकते हैं, उनको 100 रुपये के लिए वो 2 घंटे में अगर उनको दें तो मतलब काम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है कि हर बंदा उसकी बैलेंस देखेगा। मैंने कहा था आपसे शुरू में, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है कि मैं प्रीवियस किसी जॉब में था, तो वहाँ पे मैं फैमिली के साथ रहता था और साथ में ही किसी हमारे बड़े अफसर का घर था। तो वहाँ एक हमारी ऑफिस से एक स्वीपर आता था, हफ्ते में एक दिन शायद, वो वहाँ पे जो कचरा वगैरह बाहर जमा होता था वो लेके जाता था और इस तरह गाड़ी आती थी। साथ में ही हमारा एक और भी बंदा था जो कि मेरे इदारे में काम करता था, मगर वो हमारी उस बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट नहीं करता था, ठीक है। हम किसी और इदारे में इकट्ठे काम कर रहे थे। खैर उसने भी कहा यार ये आपका जो स्वीपर आता है, तो आपका जो स्वीपर आता है इसको आप बता दें, उसको आप बता दें कि ये जो है वो मेरा भी काम करता जाए। तो ये एक मिनट सॉरी। तो उसने कहा कि जी ये जो आपका स्वीपर आता है तो उसको भी आप बता दें कि जी ये कर दें। हम चूँकि वो बंदा हमारे इदारे का था, हम उसको कुछ पेमेंट नहीं करते थे, मगर मेरे घर में जब वो आता था तो सफाई करता था और लेके जाता था। मगर हमारा एक सिस्टम था वहाँ पे उसको ड्राइंग रूम में बिठा के उसको चाय भी मिलती थी और बिस्किट भी मिलते थे, ठीक है, और वो चला जाता था। और कभी कभी मैं उसको कुछ खर्च पानी भी दे देता था जब भी, मगर उसके लिए कोई पेमेंट मुकर्रर नहीं थी क्योंकि वो ऑफिशियली बाउंड था काम करने का। अच्छा, और मजे की बात है वो जिस अफसर के पास जाता था शायद उसको वहाँ पे चाय पानी नहीं मिलती थी, मगर हमारे घर में उसको वो चीज़ें मिलती थी एक रिस्पेक्ट के साथ और उसके साथ। तो जब मैंने उसको कहा कि यार साथ वाला बंदा कहता है जी मेरे भी चीज़ें उठा ले तो मैं उसको पेमेंट करूँगा, उसने ठीक है। तो उसने कहा जी मेरे जो कचरा है उसने हर 15 दिन के बाद उठाना, ठीक है। तो एट द एंड उसने उसको दे दिए 50 रुपये। वो बंदा मेरे पास आ गया कि जी मुझे तो उसने महीने के बाद 50 रुपये दिए। अब प्रॉब्लम क्या था, उस बंदे ने ये किया कि जी जो है वो महीने में वो 2 बार आया है तो मैं एक बार के 25 रुपये दिए हैं, उस सफाई का दौर था तो दो बार उसने उठाया तो 50 रुपये देता हूँ। अब ये जो स्वीपर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक काम में कर रहा था, महीने के बाद मुझे पेमेंट मिल रही है, महीने के बाद उसको मिले 50 रुपये, तो ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट। अगेन द लिंकेज इज मैटर। अगर उस बंदे ने उसको कहा होगा कि जी वो जितनी बार उठाएगा हर बार उठाने के मैं उसको 25 रुपये दूंगा, तो फिर शायद वो अगर वो देखता कि जी हर एक बार कितना उठा के फेंकने के 25 रुपये मुझे मिल रहे हैं तो वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो वो फिर डिसीजन वो लेता। उसने कहा जी महीने के एंड पे मैं पैसे दूंगा, तो महीने के एंड पे उसने बेशक 2 बार काम किया मगर वो उसकी सैलरी को महीने के ऊपर डिवाइड कर रहा था, तो वो फिर बिल्कुल ही किसी लेवल की नहीं बन रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप मतलब किसी को पे कर रहे हैं, जब आप किसी के लिए जो है वो आप इंसेंटिव्स जो हैं वो डिवाइस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो माइन्यूट होती हैं बेशक, मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसकी जो रिलेवेंस है वो आपने देखनी होगी
और अगले बंदे की भी जो है वो हर रिवार्ड जो है हर बंदे के लिए वैल्यूएबल नहीं होता, ठीक है, हर बंदे के लिए हर रिवार्ड वैल्यूएबल नहीं होता। अगेन ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो वहाँ पे काम करते हैं। तो आपका काम है कि इन चीज़ों को देखना कि कौन से रिवार्ड जो हैं वो किस वक्त मोटिवेटर हैं और किस वक्त मोटिवेटर नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि इफ एम्प्लॉइज आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटीज व्हिच बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड if they are provided the opportunities which give them the trainings, their career development opportunities, and the feedback with regard to the performance in terms of accurate appraisals, and they have the knowledge of the desired rewards, and you can increase the employee motivation. Okay, so motivation को increase करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो सही से अपने जो इंसेंटिव सिस्टम है उसको डिज़ाइन करें as per people's needs, as per individual differences, and considering not only the expectancy of the performance, but you have to consider how much rewards are valuable to the people and how they are instrumental to the performance, and how they are linked and connected with the performance. Okay, and that connection must be appropriate and must be aligned with the people's values, aligned with the people's preferences. If this alignment is not there, people will not be motivated. Okay, they will not, their efforts will not result into the performance. Okay, and one thing is must be considered over here. If you offer someone and that offer is not accepted, okay, so again you must know that what will be the negative effects of that the inappropriate offer. Okay, I think that that will also result in the demotivation. Okay? एक बंदा जो है वो 8 घंटे काम कर रहा था और सही से कर रहा था, आपने उसको कहा जी आप 2 घंटे काम करें और मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो खुश हो गया जी। 2 घंटे के बाद वो पैसे फौरन उसके जहन में आ गया कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये वो। मैं उसने, क्योंकि बंदे का जो थिंकिंग पैटर्न है वो बड़ा तेज होता है, आप उसको कहेंगे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो फौरन उससे आगे के पता नहीं कितने ख्वाब बुन लेता है। तो आपने उनके ख्वाब बुन लिए और फिर जब आपने ऑफर की तो वो जो है उसके मुताबिक जो है वो नहीं आए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपकी इस ऑफर से अगर डिमोटिवेट हुआ या डिस्करेज हुआ, इस ऑफर से डिसअपॉइंट हुआ, तो दिस डिसअपॉइंटमेंट विल लीड टू द डिससैटिस्फैक्शन, demotivation, okay, and discouragement. तो समटाइम जो है वो कहते हैं कि वो ऑफर न करना ज़्यादा बेहतर था, इसलिए बेहतर है तो ऑफर करने से पहले यू हैव टू हैव अ गुड होमवर्क, ठीक है, you have to design this incentive and compensation policy in a rightful way, that your offer is not rejected, rather it is accepted in a right direction, right? Okay. So there are some types of incentive plans. We will discuss these in detail. So these are the terminologies which we use when we devise the pay for performance plans. One term which is normally used, that is variable pay, and that variable pay might be having an organizational focus as well as an individual focus. Organizational focus means a variable pay which focus a team or a group. Okay, it refers an incentive plan that ties pay to some measure of performance. Okay, and to measure of the firm's overall profitability. Say for example, you think that if the organizational revenues exceed beyond certain point, and you will give a certain level of bonuses to the people. This was a very traditional and old method. Okay, in some cases, our sugar industries used to provide the bonuses to the sugar growers. Okay,
annually, and that was based upon their you know certain standards for the revenue which they generated through crushing the sugar in a particular season, right? The second point is individual focus. Any plan that ties pay to an individual productivity or profitability is usually as one-time lump sum payments. Okay, so these again the bonus are the one-time payments. So these are the variable pay. It means you try the performance with a certain bonus, and you devise and you determine certain level of performance. If an employee exceeds that standardized level, he or she is deserved to get certain payments, usually in one time and lump sum payments, and those payments can be called as a the bonuses. So if such system exists, that is a variable pay. Okay, and if that system does not exist, that is the normal, which is the salary and packages which are not variable. Variable वो है जो कि change होता है performance के साथ. So here pay for performance plans, individual incentivity recognition programs, sales compensation programs, team and group based variable pay programs, organization wide incentive programs, and executive incentive compensation programs. So what are the individual incentive plans? Sometimes we say the piecework plans. Workers in a piecework plans are paid a sum that is called a piece rate for each unit he or she produces. Okay, so the piecework plan is the payments which are made in terms of each unit of the output. Okay, so that might be the state piecework or the standard hour plan. So again, that output may be divided into the output in terms of the units produced. Okay, those identifiable units which are being produced by the people in a work setting. Either you can pay in terms of hours. Okay, if outcome cannot be measured in terms of units, you can divide into the hours at the time which is spent for performing certain tasks. So state piecework, a fixed sum is paid for each unit the worker produces under an established piece rate standard. An incentive may be paid for exceeding the piece rate standard. Okay, so वो इंसेंटिव आप दे सकते हैं कि अगर आप एक लेवल देखें, एक आपने मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक कारपेंटर आपने हायर किया हुआ, ठीक है, और वो एक दिन में वो इतनी चेयर जो है वो बनाते हैं. आप कहते हैं अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर इतनी चेयर बनाएंगे तो आपको पर चेयर इतना पैसे मिलेंगे. अगर आप इससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर जो ज़्यादा होंगे उसके लिए आप हर चेयर के ऊपर इतना आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, या सेल्स में आप कहते हैं जी कि आप सेल्समैन हैं तो आपको जो है आपका ये टारगेट है, मंथली टारगेट है कि आप 100,000 की सेल्स करनी है. एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर या 4 हफ्तों के अंदर आपने 100,000 की सेल करनी है. अगर 4 हफ्ते के अंदर आपकी सेल जो है 100,000 के क्रॉस करेगी तो ऊपर जो भी होगा मतलब उसके ऊपर मैं आपको 5% 10% जो है वो परसेंटेज दूंगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जो है वो एक किस्म का उनको जो एक्सीड परफॉर्मेंस वो करता है स्टैंडर्ड को, तो उससे आप पे करते हैं. ठीक है, और या यही पेमेंट आप अगर वर्क यूनिट में आप डिवाइड नहीं कर सकते तो आवरली आप करते हैं. एक बंदा अगर मिसाल तो हायर किया हुआ आपने, उसने जनाब 4 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, तो अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है 8 घंटे से ज़्यादा करता है तो आप उन्हें आवरली पे रेट से देते हैं. तो आमतौर पे आपने फैक्ट्रीज में भी देखा होगा कि लोगों को जो है वो क्या मिलता है उनको क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जब पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं जो ओवर टाइम पेमेंट्स मिलती हैं. ठीक है, अगेन देखिए मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, कोई टाइम था कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो ओवर टाइम देती थी ड्राइवर्स को.
ठीक है, ट्रेन ड्राइवर्स को। और ओवर टाइम क्यों देती थी कि जो गाड़ी मिसाल के तौर पर अगर देखें कराची से निकली है और रावलपिंडी, उसका टाइम डेजिग्नेटेड टाइम था 24 आवर्स का, ठीक है। अगर वो 24 आवर्स से लेट हो जाती थी तो यानी कि जो बीच में बंदा होगा या कहीं भी अगर एक बंदे का जो ये शिफ्टों में चलते हैं, मिसाल के तौर पर उसके 8 घंटे की शिफ्ट है, तो ट्रेन लेट हो गई, अगर उसको 10 घंटे लग गए तो जनाब 2 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो अभी आप ये देखें कि अगेन आप किस चीज़ को पे कर रहे हैं, आप दे तो जनाब एक्स्ट्रा पैसों के उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, मतलब आप ओवर टाइम ही दे रहे हैं, और दैट इज गुड थिंग कि जी एक बंदे का 8 घंटे का ड्यूटी टाइम था, आपने उसने 10 घंटे लग गए, आपने 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर ली, दैट सीम्स फेयर। बट अगेन your connection is wrong. You are encouraging the drivers to be late. Okay, मतलब अगर 8 घंटे पे आ गया तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, हाँ लेट हुआ तो उसको पैसे मिलेंगे, तो फिर वो लेट ही होगा ना ताकि उसको पैसे मिले। रॉन्ग टाइड अप, ओके, या रॉन्ग लिंक, ओके। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, ये किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि जो टाइम पे आएगा वी विल गिव देम द रिवार्ड, जो लेट आएगा उसको हम नहीं देंगे, ठीक है। और अगर वो लेट भी, अगेन लेट के भी 2 किस्म होते हैं ना, एक लेट होती है जो कि सिस्टमेटिक लेट हो, यानी गाड़ी खराब हो गई, लाइन खराब हो गई या कोई चीज़ें हो गई, अगर कोई उस बंदे की गलती की वजह से हुई है तो फिर एक अलग सा चीज़ है। तो अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड को आप आइडेंटिफाई करें कि परफॉर्मेंस अगर लो है तो क्यों है, हाई है तो क्यों है, ठीक है, और फिर आप जो रिवार्ड्स हैं उनको लिंक करें तो आप सही से लिंक करें। ऐसा ना हो कि आप कहीं पुअर परफॉर्मेंस को रिवार्ड कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस को रिवार्ड करने के बजाय पुअर परफॉर्मेंस को रिवार्ड कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो इनकरेज हों ताकि पुअर परफॉर्मेंस करें। मैंने कहा ना ड्राइवर्स की मिसाल दी, अगर वो लेट हो जाते हैं आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो वो फिर लेट ही होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। So, the rightful alignment of your job. Okay? So there are some pros and cons of the piecework. Okay, easily understandable, equitable, and powerful incentive. That is a good point. Secondly, implies resistance to change in standard for work process affecting output. People sometimes resist. Okay, they cannot agree on the standards of work process. Quality problems. Okay. Caused by an overriding output focus. Again, here, what is the third disadvantage of the piecework plan system is the quality problems, which arise when you have a greater focus on the output. Okay, and it means you are focusing on the quantity, not the quality. Okay, when you pay for the more units, so it means you are just measuring the units of the output. Sorry. You are not focusing on the quality of that output. So people will be producing more and more, and regardless of their quality, and in order to just get the more benefits which are attached towards units of output. Okay. So whenever you are designing the piecework pay plan system, you have to also make quality as a part of this system. Otherwise, it will be creating a lot of problems for you. Okay, it will not provide you the benefits. Rather than it will increase your the cost if the क्या नाम है, ये चीज़ें जो हैं आपकी क्वालिटी के ऊपर लो हैं और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो फिर चूंकि वहाँ पे वो रिटर्न रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इससे वेस्टेज और कास्ट के भी आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है। एंड देन देयर माइट बी द वायलेशन ऑफ मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स. Sometimes people cannot perform well in standardized time, and they end up getting the salary less than the minimum wage standard, and you can be cited in such laws. Okay, implies dissatisfaction when incentive either cannot be earned due to the external factors or withdrawn due to the lack of the need for the output. Okay, so again there might be some sort of problems because there are some external factors which may hamper the performance of the people when the piece rate is
they introduced. Okay, so these may result into the dissatisfaction of the employees in the organization. So this is the end of today's lecture, and next time we will discuss what are the merit pay and some other things. So this part we are ending over here. If you have any question, you can ask freely. Okay. Any question, please? No, sir. You don't have any. No, sir. Okay, well done. Thank you, Baba. And we stop over here.